Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to MB again. My name is Akash Shinde. Those students who have joined lately to the channel, let me introduce about myself. My name is Akash Shinde. I scored 99 percentile in each and every examination when it comes to quant, and I have cracked 35 plus B score. My LinkedIn ID is Akash Shinde. You can go to my LinkedIn ID and search about the scores which are present there. So I am making this video to let you know about how I scored 99 percentile in each and every examination. SNAP हो, CAT हो, SAT हो, NMAT हो, CMAT हो, MBA CT हो, I have scored 99 percentile plus in each and every examination. So मैं आपको कुछ strategies बताऊं that how I scored 99 percentile in each and every examination, right? तो मैंने जैसे इनिशियली स्टार्ट किया था, आई वॉज नॉट फ्रॉम IIT, आई वॉज नॉट फ्रॉम NIT. So there was lot of pressure on me that whether I'll be able to score in examination or not. 99 percentile तो दूर की बात है, मैं स्कोर करूंगा कि नहीं ये क्वेश्चन था मेरे पे. बट still the job that I was doing, it was a shitty job and I always wanted to get out of that job. That's why CAT was the only option that was left for me. I ended up scoring 99 percentile each and every examination, and I have passed out from Great Lakes Institute of Management Chennai PGPM and got a decent job in the industry. I'll tell you some things that you need to keep in mind when it comes to CAT examination. If you look at the CAT paper, for 99 percentile you need to score in between 36 to 48 marks. आपको 12 क्वेश्चन सॉल्व करना है. इफ यू आर एबल टू सॉल्व 12 to 13 क्वेश्चंस, यू आर सॉर्टेड फॉर कैट, यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ. सी मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो बच्चे मेरे को बोलते कि नो सर, if I solve 18 questions, out of that, if I'm able to make the right 13 questions and 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो कितने मार्क्स आ जाएंगे? 13 to 4, 52 minus 5, 47. Still you are able to score 99 percentile. बट रियलिटी में ऐसा होता है? नो. रियलिटी में कैट इज वेरी टफ. लोग जो यूट्यूब पे ज्ञान देते कि नो कैट में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 9 क्वेश्चन, दैट इज ओके. मैंने कैट 2 बार दिया है. आई हैव गिवन ऑल दिस एग्जामिनेशन फॉर ऑलमोस्ट 2 years एंड आई नो what kind of things comes into the picture. सबसे पहली चीज, डोंट अंडर एस्टिमेट द कैट क्वांट पेपर, ZAT और NMAT पेपर. क्या होता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं यार, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द पेपर वेरी वेल, क्योंकि क्वेश्चन ही कॉम्प्रीहेंड नहीं होगा. अगर कॉम्प्रीहेंड ही नहीं होगा तो यू विल नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो स्कोर कैसे आएगा, राइट? एंड देयर आर सम पीपल जिनको क्वेश्चन समझता है, स्टिल दे डू माइनर एरर्स. अगर आप माइनर एरर्स करोगे, देन यू आर आउट ऑफ द रेस. You need to keep all these things in mind whenever you are going through CAT examination, right? When it comes to CAT, आपको 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे ढूंढने पड़ेंगे which will be easy for you to solve, right? See, 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे CAT में होंगे which will be in your range, and you should be able to look at this question, plug equation and solve it. After that there will be 3 to 4 questions. That questions will be complex, tricky, but you need to apply your permutation combination. थोड़ा लॉजिक लगा लो. Maybe you can go through options. In most of the examinations, when there will be tough question, I used to use options, and through that option I used to go to the answer. तो अगर ये strategy follow करोगे, then it will be very easy for you to score 99%. If I look at CAT, CAT is divided into 3 portions: algebra, arithmetic, geometry. Arithmetic is one of the biggest portion when it comes to CAT examination. Ratio, proportion, simple interest, ये topics आपको must करना पड़ेगा. Along with that, focus on time, speed, distance, time and work, simple interest. ये सब topics आपको correct करना पड़ेगा. I have a strong handhold on this topic. That's why I was able to score 99%. Apart from arithmetic, algebra and geometry जब picture में आता है, the questions are little bit tough and tricky होते हैं. But मैं आपको एक ग्राफ एंड डेटा बताऊंगा कि क्या हो रहा है कैट में. व्हेन इट कम्स टू कैट 2024, देयर वे ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चंस, 33 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल था. इट मींस आपको 11 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए. 8 to 9 क्वेश्चन अरिथमेटिक के आए थे, 6 to 7 क्वेश्चन अलजेब्रा के आए थे, 3 to 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री आए थे.
आपका अरिथमेटिक सॉर्टेड होना चाहिए, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। विद इन 11 क्वेश्चंस यू आर गेटिंग 99%. If I look at CAT 2023, see, one third of the questions were from arithmetic. अलजेब्रा से 7-8 क्वेश्चन आए थे, ज्योमेट्री से 3-4, मॉडर्न मैथ से 2-3। अगर आपने वहां कैट 2023 में 13 क्वेश्चन सॉल्व किए, यू आर गोइंग टू गेट 99% टाइम। सी, कैट 2022 अगर मैं लूं तो you need to score 35 marks. The quant was one of the toughest quant in the 10-year history of CAT. So there are a lot of facts, figures come into the picture, right? सबसे पहले ट्रिक है कि डोंट those people who are gonna start अर्ली इन द फेज ऑफ जर्नी। कुछ लोग ऐसे है कि दे हैव स्टार्टेड द जर्नी जस्ट नाउ, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। सबसे पहले कि डोंट अवॉइड क्वांट्स अर्ली फेज ऑफ योर प्रिपरेशन। नॉन इंजीनियर्स होते हैं, बहुत डरते हैं प्रिपरेशन के स्टार्ट में, क्वांट नहीं लेना चाहते। जब अक्टूबर नवंबर आता है, दे आर इन अ सीरियस डिलेमा। Attempt quant sectionals as soon as possible. Analyze the paper very well. मैं जब mocks देता था, I used to give 2 hours for mocks and 5 hours to analyze the question paper. And अभी से आदत लगा लो कि you are not gonna use calculator, ताकि ये आदत आपको मेन पेपर में आएगी। And when the complex question will come to you, you will be able to solve these questions very well. Suppose that those people who have started their journey and are going to start the journey, guys, आपको दो नोटबुक लेना पड़ेगा। एक फार्मूला बुक होना चाहिए जिसमें आप सब फार्मूला लिखोगे, दूसरा होगा नॉर्मल बुक, दिस इज फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आप, मैं क्या करता था, जो नॉर्मल बुक होता था, द फर्स्ट जो मिड पेज था, मिड पेज के लेफ्ट साइड में डेली क्वेश्चन सॉल्व करता था, मिड पेज के राइट साइड में जो भी मॉक्स दिया था उसको एनालाइज करके लिखता था कि ये गलती नेक्स्ट मॉक में ना हो। एंड व्हेन आई एम गोइंग टू राइट द नेक्स्ट मॉक, आई रिवाइज द पास्ट मिस्टेक्स। अगर ये आप करोगे, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्कोर 99%। पोस्ट दैट पीवाईक्यू, आपको पीवाईक्यू फॉर लास्ट 10 इयर्स सॉल्व करना पड़ेगा। कैट फॉर स्नैप ऑलमोस्ट 5 इयर्स, फॉर एनमैट 4 इयर्स, फॉर जैट ऑलमोस्ट 10 इयर्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं करते। अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, यू विल बी नॉट एबल टू स्कोर 99%। ट्राई करो कि सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। प्रैक्टिस करना पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल। अरिथमेटिक अगर जल्दी उठा लिया है तो जून से स्टार्ट करके जुलाई मिड तक खत्म कर दो, फिर क्वांट सेक्शन देना स्टार्ट कर दो। अगर अलजेब्रा ले रहे हो, जुलाई मिड से अगस्त मिड तक खत्म कर दो। एंड ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हो तो अगस्त मिड से सितंबर 10 तक खत्म कर दो। मे बी यू कैन लीव आउट परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक आप छोड़ सकते हो। मेरे टाइम भी मैंने छोड़ा है, बट मैंने बेसिक लेवल का क्वेश्चंस किया था कैट में इन 2022 व्हेन आई वाज गिवन द कैट। एक इजी क्वेश्चन आया था एंड आई वाज एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ आई हैड अ लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द टॉपिक, राइट? तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सी, मैंने कैट के लिए जितना भी प्रिपरेशन किया था, it has helped me out when it comes to snap examination. मैंने snap का जो quant का पेपर था, I solved it within 12 minutes. Usually 25 minutes का टाइम होता है, I solved it within half of the minutes and I have solved almost 20 questions because of the speed and because of the topic understanding that I had. When it comes to mock के लिए मैं 2-3 चीजें बताऊंगा आपको। फुल लेंथ मॉक्स अगस्त से स्टार्ट करना चाहिए, अगस्त में 2 मॉक्स पर मंथ देना चाहिए। सितंबर में यू शुड डेफिनेटली गिव 4 मॉक्स। हर संडे मॉक दे दो फुल लेंथ, बट सैटरडे संडे सेक्शनल दे दो। मे बी एक दिन वीआरसी का दे दो, एक दिन क्वांट का मस्ट देना पड़ेगा। पोज दैट दो स्टूडेंट हु आर स्टार्टिंग वेरी अर्ली, नॉन इंजीनियर बच्चों के लिए मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि आप डरोगे इनिशियली, दे आर वेरी स्केर्ड व्हेन इट कम्स टू क्वांट, तो यू शुड डेफिनेटली स्पेंड 3 to 4 आवर्स इन क्वांट्स। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो मिनिमम 2 घंटे आपको देना ही पड़ेगा फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। This was my whole strategy when it comes to quiet examinations. I'll make a different strategies how I score 99 percentile in SNAP, NMAT, and ZAT examinations. That's all about this video. If you have any questions, please put it into chat box. I'll be always there to help you out.